Good morning, students. Now today we are going to start next chapter named current electricity. Question is this: what do you mean by current electricity? तो अभी जो आपने 2 चैप्टर में पढ़ा उसमें जितने भी फिनोमेना पढ़े, व्हेन चार्जेज वेयर इन रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होता था तो वो कैसा शो करता था, कौन कौन से फिनोमेना शो करता था, वो सारा हमने पढ़ा. नाउ क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल हैपन व्हेन चार्जेज विल बी इन मोशन. देन फ्रॉम आवर अर्लियर क्लासेस वी यूज्ड टू से कि when charges will be in motion, it means that moving charges constitute an electric current. It means that when charges will be in motion, जब चार्ज मोशन में रहेगा तो वह जो है इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो करेगा. राइट. क्वेश्चन है दिस कि यदि चार्ज मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहाँ करेगा. Then we used to say that this very current may flow through a conductor, may flow through a liquid. Question is how? Okay, let us suppose you have a conductor. It is well known fact to you all that a conductor has large number of free electrons, and when we apply potential difference across its ends, then all charges move along a particular direction, and as charges are in motion, it means that is constituting electric current, or current is flowing through that very conductor. In case of liquid, in case of ionic liquid, our ionic liquid contains large number of positive and negative ions, and these ions means these charged particles can move, and when these will be in motion, then they will again that will constitute electric current. Right. Then question is, what should be definition of electric current? Then simply we used to say rate of flow of charge. Rate of flow of charge is known as a strength of electric current, or simply electric current. Means if through a conductor, if through a liquid, charges are in motion, then through any cross section, what is the rate of flow of charge? Means what amount of charge is flowing through any cross section per unit time. That very thing is known as electric current, or a strength of electric current. Right? And listen, when charges will be in motion, then we can say charges flow along a particular direction. Then question is this, it means that current should have direction. Then question is this, what will be direction of current? Then we used to say current flows along the direction of movement of positive charge. Current flows along the direction of positive charge. ये कन्वेंशन लिया गया है. इसको समझेंगे कैसे? For that come over this very fact. See here. Let us suppose you have a wire. Let us suppose you have a conductor, और इस कंडक्टर से मान करके चलो कि जो है पॉजिटिव चार्ज यू मे टेक एग्जांपल ऑफ कंडक्टर और एनी अदर लिक्विड. इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए लिक्विड ही इमेजिन कर लो कि मान लो जो है क्यू चार्जेज लेफ्ट टू राइट चल रहा है, और या कह दो कि टोटल जो है कुछ चार्जेज लेफ्ट, कुछ पॉजिटिव चार्ज लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं और कुछ पॉजिटिव चार्ज राइट टू लेफ़्ट चल रहे हैं. राइट. इन दोनों का मिला करके अगर कुछ राइट लेफ़्ट टू राइट चले और कुछ राइट टू लेफ़्ट चले, तो दोनों का मिला करके जो है अगर निकालोगे तो लेट अस सपोज कि जो है क्यू चार्ज जो है लेफ़्ट टू राइट चल रहा है. मतलब ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे पास से 10 रुपया तुमने खर्च कर दिया और 2 रुपये आए, तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल जो 8 रुपीज़ तुमने खर्च किया माना जाएगा. तो लाइक इन द सेम वे अगर क्यू जो है टोटल जो है कुछ पॉजिटिव चार्ज लेफ़्ट से राइट गए, कुछ राइट से लेफ़्ट गए, और लेफ़्ट से राइट जाने वाले मान लो ये जा रहे थे, तो लेफ़्ट से राइट ओवरऑल कितना गए? तो लेट अस सपोज हमने कहा दिया क्यू चार्ज लेफ़्ट टू राइट गए, क्यू पॉजिटिव चार्ज. राइट. और उसी सॉल्यूशन से, उसी लिक्विड से मान लो जो है कि कुछ निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट टू राइट गए और कुछ राइट टू लेफ़्ट गए. उसके चलते टोटल जो है क्यू चार्ज जो है लेफ़्ट टू राइट नेगेटिव चार्ज गया है.
देन क्वेश्चन इज दिस कि टोटल कितने चार्ज फ्लो किए, तो ज़रा सा ध्यान से देखो तो क्यू पॉजिटिव चार्ज लेफ़्ट टू राइट आए हैं और क्यू ओवरऑल क्यू निगेटिव चार्ज लेफ़्ट टू राइट आया है। इसका मतलब यू कैन से दोनों अपोजिट नेचर का होता है। देन वी कैन से टोटल क्यू माइनस क्यू मीन्स क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस चार्ज लेफ़्ट टू राइट आया है। इतना आने में टोटल टाइम टी लगा है, तो अगर टी टाइम में इतना चार्ज तो यूनिट टाइम में रेट हम लोग यूनिट में निकालते हैं। हाँ, सब्जी का क्या रेट है भाई, मतलब 1 kg का क्या रेट है। लाइकली इन द सेम वे यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, देन अगर टी टाइम में क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस चार्ज फ्लो किया है तो यूनिट टाइम में क्यू बाई टी, और क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस का मान लो ओवरऑल वैल्यू आता है क्यू, तो क्या हो जाएगा टी टाइम में क्यू चार्ज तो यूनिट टाइम में क्यू बाई टी। इट मीन दैट करंट विल बी इक्वल टू क्यू बाय टी, राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट थिंग इज दिस कि व्हाट विल बी इट्स यूनिट, देन अकॉर्डिंग टू दिस वेरी फार्मूला इट्स यूनिट शुड बी कूलम्ब पर सेकेंड which is also known as ampere and it is denoted by sign A. Now see here, current is not always steady, means steady means constant। current जो flow करता है किसी solution से किसी कंडक्टर से तो यह कांस्टेंट नहीं होता है। मतलब कि मान लो कि अभी कुछ करंट फ्लो किया, थोड़ी देर बाद कुछ करंट फ्लो किया, मीन्स अगर फ्लो कर ऐसा होता है इट मीन दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज स्टेडी। तो इट मीन दैट इसका वैल्यू अलग अलग इंस्टेंट में अलग अलग होगा। दैट्स वाई वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस करंट। हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट डिफाइन करते हैं और इसी को फिर करंट कह देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट मीन्स किसी खास क्षण में करंट, वो कैसे निकालेंगे, तो लेट अस सपोज वी आर फाइंडिंग करंट एट एनी टाइम टी, तो उस टाइम टी पर छोटा सा एक टाइम इंटरवल लो डेल्टा टी, और इस छोटे से टाइम इंटरवल में लेट अस सपोज डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया, तो इसका मतलब डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया तो यूनिट टाइम में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दिस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और यह टी डेल्टा टी जितना से छोटा हो सके तब माना जाए कि एकदम जो है करीब करीब एकदम पूरे टी टाइम पर हम लोग करंट निकाल रहे हैं। देन वी यूज टू राइट आई इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी विच इज आल्सो नोन एज डी क्यू बाय डी टी। क्लास 11th में पढ़ लिए होगे। नेक्स्ट थिंग इज दिस, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट तो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट थिंग इज दिस कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वी यूज टू से, जरा अभी आपने कहा कि जो है करंट जो है जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर फ्लो करता है, इट मीन दैट इट हैज़ डायरेक्शन आल्सो, सो इट शुड बी ए वेक्टर क्वांटिटी, बट नो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे क्लास 10 तक, वह कहते थे ऑल दोज क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड्स आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, वेयर एज दोज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन यह डिफिनेशन, दिस वेरी डिफिनेशन इज इनकम्प्लीट वन। वी क्लास 11th में मधुप सर आप लोगों को बताए होंगे। वी यूज टू से ऑल दोज क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड and direction and which follow triangle law of vector addition are known as वेक्टर क्वांटिटीज। वैसे सभी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड हो, जिसको डायरेक्शन हो और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, दे आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखो तो जरा सा ये कैसे यह स्केलर हो गया, रियली यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, कैसे। देन सी हियर, लेट अस सपोज यू हैव टू वायर्स, थ्रू वन 4 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग, और दूसरा है जो 3 वायर है, 3 एम्पियर, दूसरा वायर है उससे 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री से वायर आ रहा है। कह दोगे इसको मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक नया वायर मैं निकाला हूँ। क्वेश्चन है दिस, इससे कितना करंट फ्लो करना चाहिए, तो अगर कह दोगे कि अगर 4 एम्पियर और 3 एम्पियर है, जिसको अगर 4 मीटर और 3 मीटर वेक्टर क्वांटिटी ले लोगे, डिस्प्लेसमेंट ले लो, और दोनों 90 डिग्री पर होगा, तो उसका रिजल्टेंट होना चाहिए 5 मीटर और नॉट। बट यू टेल मी, क्या तुमको लगता है कि अगर एक तरफ से 4 एम्पियर करंट आए, दूसरे तरफ से 3 एम्पियर करंट आए, तो क्या 5 एम्पियर फ्लो करेगा या 7 एम्पियर फ्लो करेगा थर्ड वायर में?
Really answer will be 7 ampere. It means that it does not follow triangle law of vector addition. That's why it is a scalar quantity, right?